شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آج ثابت ہو گیا ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں. دونوں بلز پاس ہونے پر تمام جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں. سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. کوشش ہے گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ JUI کے دوستوں نے بل کی مخالفت کی. وہ ابھی بھی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. ہم سے دو تقاضے کیے کہ جنہیں ہم نے نبھانے کی کوشش کی. یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے, اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے. اس کو وہاں ناکامی ہوئی, اس کو وہاں شکست ہوئی, آپ کو کامیابی ہوئی. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے. چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا, ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا. ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے, ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے. پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے, ماحول صحیح نہیں تھا, ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی. یہ فری ایکسیس نہیں ہے, یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے. پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی, یہ فری ایکسیس نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ جو بات کرنے والی ہوتی ہے حکومت اس پر خاموشی اختیار کرتی ہے. ہم معلم جبا سمیت ہر چیز کا حساب لیں گے. 2 ٹک ٹاک سٹار وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھی نظر آتی ہیں. وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا عام بات ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مشاہد اللہ نے کہا کہ جہاں کرپشن کی لوٹ ہوئی وہاں احتساب کمیشن ہی بند کر دیا. انہوں نے احتساب کرنا ہی نہیں. ہر چیز کا حساب لیں گے, ہم معلم جبا کا حساب لیں گے, ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے, ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے, کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی, آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں, صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے. لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا. وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے, اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں. باتیں کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ KP کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے, اپوزیشن کو تکلیف پہنچا, منہ سے کیا کر رہے ہیں. اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا. پھر ڈر جاتے ہیں. بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس پہ قائم رہو نا, پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دور. اور اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن جادھو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ 3 اگست کو حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گی. حکومت نے حالیہ صدارتی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کی جس میں موقف اپنایا گیا کہ کلبھوشن نے سزا کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا. کلبھوشن بھارتی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا. بھارت نے آرڈیننس کے تحت سہولت حاصل کرنے سے گریزاں ہے. استدعا ہے کہ عدالت کلبھوشن جادھو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے. دیر بالا کے علاقے شیراگئی بالا میں نماز جنازہ کے دوران فائرنگ 9 افراد کو قتل کر دیا گیا. 10 زخمی ہو گئے. زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دونوں گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے اب بھی جاری ہے. اہم اور افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دیر بالا سے, جہاں پر نماز جنازہ کے دوران فائرنگ 9 افراد کو قتل کر دیا گیا. 10 زخمی ہو گئے. زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے. پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دونوں گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. خانہ کعبہ کو غسل دینے اور تبدیلی غلاف کی روح پرور تقریب ہوئی.
कुदरत भी मेहरबान। मक्का मुकरमा, मिना और अराफात में बारान रहमत हुई। मक्का मुकरमा में खाना काबा को गुस्ल देने और तब्दीली गिलाफ काबा की पुरवकार तकरीब हुई। हरमैन शरीफ खैन के अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान ने तकरीब की निगरानी की। तकरीब में कलीद बरदार काबा मुंतजमीन, सऊदी हुक्काम और गुलाब साज कस्बा फैक्ट्री के जिम्मेदार भी शरीक हुए। खाना काबा को गुस्ल देने के बाद खालिस सोने, चांदी की तारों और खालिस रेशम से तैयार करदा गिलाफ काबा तब्दील किया गया। गुलाफ की तैयारी में 100 किलोग्राम से जायद खालिस सोना, चांदी और 675 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल की गई है। हज के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक किसी भी आज़मीन हज में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। सिक्योरिटी हुकाम ने बिला इजाजत मुकद्दस मकामात में दाखिल होने की कोशिश में 936 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। सिक्योरिटी हुकाम ने इन तमाम अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। पकड़े जाने वाले अफराद पर कम से कम 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक हाजियों की सेहत की तमाम सहूलियात फराहम कर रही है, जिसके तहत मुकद्दस मकामात पर 6 अस्पताल, 51 क्लिनिक्स, 200 एम्बुलेंस, 62 फील्ड टीमें, फील्ड अस्पताल और मोबाइल क्लिनिक समेत हाजियों की रिहाइश गाहों पर 3 क्लिनिक भी कायम किए गए हैं। पाकिस्तान में मजीद 1114 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद 2,77,402 हो गई। 24 घंटों में 32 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 5,924 हो गई। 1,180 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,46,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,190, पंजाब में 2,138, खैबर पख्तूनख्वा में 1,192, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 51 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,114 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 92,655, सिंध में 1,20,052, खैबर पख्तूनख्वा में 33,845, बलूचिस्तान में 11,708, गिलगित बिल्तिस्तान में 2,090, इस्लामाबाद 14,987, आजाद कश्मीर 2,065 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,72,00,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,71,000 हो गई। 1,07,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मोदी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,71,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,53,840, ब्राजील में 90,188, रूस में 13,673, भारत में 35,100, टर्की में 5,660, ईरान में 16,343, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,816 अमवात अब तक हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए पाक फौज और NDMA को शहर कायद की सफाई से मुताल्लिक टास्क दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत की है। NDMA कराची में बारिशों के बाद सफाई का अमल फौरी तौर पर शुरू करवाएं। वजीर आजम ने चेयरमैन NDMA को सफाई के अमल की मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की और बताया कि पाक फौज को भी कराची शहर की सफाई में मदद करने का कहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए। NCOC और NDMA का किरदार अहम रहा। USAID के ताउन के मशकूर हैं। USAID के तहत वेंटिलेटर्स फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए USAID के ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान को दरपेश कोरोना वायरस के चैलेंज से आगाह किया। हुकूमत ने मोहलिक वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए। कोरोना से निपटने में NCOC और NDMA का किरदार भी अहम रहा। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमायां कमी हुई है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का कोई फुकदान नहीं। पंजाब हुकूमत ने बारिशी पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायराकार बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टोरेज के मंसूबे दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लाहौर के साथ पंजाब के बड़े शहरों में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएंगे। जखीरा किए जाने वाले पानी को
ہارٹیکلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا. بارش کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکے گا. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنایا ہے. دوسری جانب لیئر کالونی سے گلشن راوی تک نئی سیوریج لائن بچھائی جائے گی. اس منصوبے پر 14 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے. شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے. کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. گورنر پنجاب چودھری سرور سے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ملاقات کی. سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا. گورنر پنجاب نے حکومتی اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے پر شبلی فراز کی کارکردگی کو سراہا. شبلی فراز کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ہر سطح پر شفافیت اور میرٹ پر یقین بنا رہی ہے. سفارشی کلچر ختم کر دیا ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے. ان کو ملک و قوم کی کوئی فکر نہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے. قوم جس طرح وائرس کے خلاف کھڑی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی. وزیر اعظم اور وزیر اعلی پنجاب کا فوکس صحت پر ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے عثمان ڈار کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زچہ و بچہ ہسپتال سیالکوٹ کے لیے PC1 منظور ہو گیا. جب ذمہ داری سنبھالی تو 50% ڈاکٹرز پروفیسرز کی نشستیں خالی پڑی تھیں. ہم نے 28,000 نئے ملازمین رکھے جس میں ڈاکٹرز، پروفیسرز، نرسز اور دیگر طبی عملہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور نرسوں کی تنخواہیں بڑھائیں. خالی اسامیاں بھرنے سے لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر آئیں. 50 لاکھ صحت سہولت کارڈ لوگوں کو مل چکے ہیں. آصف علی زرداری نے ٹھٹھہ واٹر سپلائی ٹھیکوں کے ریفرنس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا. احتساب عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا. سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فاروق ایچ نائک اور اسد عباسی ایڈوکیٹ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. سابق صدر آصف علی زرداری نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم روکی جائے اور ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے. احتساب عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا. پاکستان نے بھارت کی جانب سے مزید اسلحہ خریدنے کی پالیسی پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں کو بھارت کی اسلحہ پالیسی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بھارت ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا درآمد کنندہ بن گیا جس سے خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت جاری ہے. بھارتی فوج نے علاقائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوا ہے. عائشہ فاروقی نے بحیرہ ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کی بھارتی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کا ذمہ دار ہے. حتیٰ کہ اب بھارت دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے. پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ترجمان نے کلبھوشن کے معاملے پر کہا کہ بھارتی جاسوس کی تیسری قونصلر رسائی پر بھارت کا تاحال جواب نہیں آیا. اسلام آباد کے علاقے E11 میں بیوہ خاتون اور اس کی 11 سالہ بیٹی کو ہمسایوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا. اطلاع پر پولیس پہنچی. ماں بیٹی کا میڈیکل بھی کروایا گیا. تشدد ثابت ہوا. تفتیش CIA کو بھیج دی گئی جہاں 4 ماہ بعد 11 سالہ لڑکی کو نشے میں دھت قرار دے دیا گیا. ماں بیٹی کو کیس واپس لینے پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے علاقے E11 میں بیوہ خاتون اور اس کی 11 سالہ بیٹی کو ہمسایوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا. اطلاع پر پولیس پہنچی جہاں پر ماں بیٹی کا میڈیکل بھی کروایا. تشدد ثابت ہوا. تفتیش CIA کو بھیج دی گئی جہاں 4 ماہ بعد 11 سالہ لڑکی کو نشے میں دھت قرار دے دیا گیا. ماں بیٹی کو کیس واپس لینے پر دباؤ ڈالا جانے لگا. اسلام آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر E11 میں آپ کو بتائیں کہ بیوہ خاتون اور اس کی 11 سالہ بیٹی کو ہمسایوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا. اطلاع پر پولیس پہنچی. ماں بیٹی کا میڈیکل بھی کروایا. تشدد ثابت ہو گیا. تفتیش CIA کو بھیج دی گئی جہاں 4 ماہ بعد 11 سالہ لڑکی کو نشے میں دھت قرار دے دیا گیا. ماں بیٹی کو کیس واپس لینے پر بھی دباؤ ڈالا جانے لگا.
और अब इलाकाई खबरें। हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स महदूद करने का फैसला। कोरोना के बाद सख्त SOPs जारी। सज्जादा नशीं अपने खानदान के साथ उर्स की रसूमात अदा करेंगे। ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स महदूद करने का फैसला कर लिया गया। कोरोना के बाद सख्त SOPs भी जारी कर दिए गए। सज्जादा नशीं अपने खानदान के साथ उर्स की रसूमात अदा करेंगे। ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स महदूद करने का फैसला कर लिया गया। कोरोना के बायस सख्त SOPs भी जारी कर दिए गए। सज्जादा नशीं अपने खानदान के साथ उर्स की रसूमात अदा करेंगे। ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। पाकपतन में मवेशियों के व्यापारी लुट गए। डाकुओं ने 9 व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकपतन में मवेशी मंडियों के व्यापारी लुट गए। डाकुओं ने 9 व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। पाकपतन में मवेशी मंडियों में लाए हुए व्यापारियों के जानवर तो बिक गए, मगर व्यापारी लुट गए। डाकुओं ने 9 व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़क भी ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। पाकपतन में मवेशियों के व्यापारी लुट गए। डाकुओं ने 9 व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। पाकपतन में मवेशियों के व्यापारी लुट गए। डाकुओं ने 9 व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं उस्मान अली से। उस्मान अली, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल। गांव जमन शाह के करीब व्यापारी नूर नबी अपने 8 साथियों के हमरा बकरे बेचकर जा रहा था कि 5 नामालूम कार सवार मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोककर व्यापारियों से 45 लाख रुपए छीन लिए। वारदात के बाद मुलजमान फरार हो गए। व्यापारियों ने जमन शाह के करीब मेन सड़क पर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन के नारेबाजी करते हुए ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मटर सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फिलफौर मुलजमान को गिरफ्तार करके हमारी रकम बरामद की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से उस्मान अपडेट करने के लिए। सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश बहन भाई गिरफ्तार कर लिए। 16 किलो मुनशियात बरामद। नईम और नसरीन मंडी बहाउद्दीन से मुनशियात सरगोदा ला रहे थे। सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश बहन और भाई गिरफ्तार। 16 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई। नईम और नसरीन मंडी बहाउद्दीन से मुनशियात सरगोदा ला रहे थे। सरगोदा में मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनशियात फरोश बहन और भाई थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 16 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई। मर्दान में नया ट्रांसफार्मर लगने पर जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े। एक दूसरे को मुबारकबादें। ट्रांसफार्मर को हार पहनाए गए। आपको बताएं कि ट्रांसफार्मर खराब होने से कई रोज से बिजली मुअत्तल थी इलाके की। मर्दान में नया ट्रांसफार्मर लगने पर जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। एक दूसरे को मुबारकबादें भी दी गई। ट्रांसफार्मर को हार पहनाए गए। ट्रांसफार्मर खराब होने से कई रोज से बिजली मुअत्तल थी। वेलकम बैक।
शहरी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त करते दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से खरीदारों की तादाद कम जबकि व्यापारियों की तादाद ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदारी का हसूल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। देखते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की ये रिपोर्ट। करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। यहाँ पर शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में पहले की निस्बत खरीदार बहुत कम है। लेकिन इस दफा एक तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार बंद है, ऊपर से इस मौजूदा महंगाई की वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले जो बकरा 30,000 का मिलता था अब वो 40 से 50,000 का मिल रहा है। इस महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ व्यापारी हजरात भी परेशान नजर आ रहे हैं। जनाब पिछली निस्बत जो ना मंडियां च बड़ा मंदा रुझान है, कोई भी लोग मंडी निकल नहीं रहे, मंडियां रौनक ही कोई नहीं। पिछली दफा बहुत ज्यादा रश सी, माल का रेट लभ रहा सी, इस दफा बिल्कुल सुनसान मंडियां पईयां ने। तीसरा दिन बाजी मंडियां फिरदे आ, जानवर लेना कुर्बानी वास्ते भाव नहीं बन रहा। जानवर ये साहब चाहे पहले सामान ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ रेट ਇਹਨਾਂ ਦੇ। बार की तरह जलालपुर भटिया में भी मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अजमल पहलवान ने मारखोर नामी बकरा पाल लिया। बकरे के मालिक का कहना है कि मैं इसको अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं। बकरे को रोजाना दूध, दही, फ्रूट और खालिस मुरब्बाजात खिलाया जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद रान से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा इस बकरे की डाइट के हवाले से। अगर की जाए बात गुजरांवाला की, और ये पहलवानों का शहर है, यहाँ जिंदा दिलाने लोग रहते हैं। और यहाँ अगर बात की जाए कि पहलवान तो पहलवान, यहाँ के बकरे भी जो है वो बादाम और कुश्ते और सेब मुरब्बाजात खाते हैं। ईद की आमद पर अगर बात की जाए पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहां अजमल नामी पहलवान ने मारखोर नामी बकरा पालकर मिसाल कायम कर दी। बकरे के मालिक का कहना है कि इसको अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं। जो मैं खुद खाना पसंद करता हूं वही अपने बकरे को भी खिलाता हूं। अजमल पहलवान का कहना है कि इसका एक दिन का खर्चा तकरीबन 5,000 रुपये, इसको रोज़ाना दूध, दही, फ्रूट और खालिस मुरब्बाजात खिलाता हूं। जी, उन्होंने कहा कि जो वो खुद खाते हैं अपने बच्चों से ज़्यादा इसको प्यार करते हैं और सेब, कुश्ते, मुरब्बाजात वो इसे खिलाते हैं और अकल वो इसको कुर्बान कर रहे हैं तो उन्हें खुशी होगी। कैमरामैन अहमद गिराया के साथ जाहिद महमूद राना, टीवी टुडे। एक अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद के इलाके 11 में बेवा खातून और इसकी 11 साला बेटी को हमसायों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। इत्तला पर पुलिस पहुंची, मां बेटी का मेडिकल भी करवाया गया। तशद्दुद साबित हुआ, तफ्तीश जो है वो CIA को भेज दी गई, जहां 4 माह बाद 11 साला लड़की को नशे में धुत करार दे दिया गया। मां बेटी को केस वापस लेने पर दबाव डाला जाने लगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इजहार, बताइएगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, हमसायों के साथ लड़ाई की वजह से खवातीन जकिया सफदर और उसकी बेटी वलीजा सफदर ने मुकदमा नंबर 183/20 थाना गोरला में दर्ज करवाया था, जिसके बाद 3-4 माह तक ना तो उस पर कोई पेशरफ्त की गई, बल्कि जब उसने इस खवातीन ने जब अपना केस ट्रांसफर करवाया CIA में, तो CIA का जो तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर था बिशारत, उसने एक जिमनी लिखकर इन दोनों माँ बेटी को मुलजिमा बना दिया और जो वो 6ठी जमात की तालबा 11 साला बच्ची को नशे में धुत उसमें करार दिया गया है। उस दिन जिस दिन ये FIR दर्ज की गई उस दिन इन दोनों माँ बेटी का मेडिकल भी हुआ था, जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका इजहार तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। ईद उल अजहा के करीब आते ही खानेवाल के शहरियों ने अपनी पसंद के कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी कर ली और साथ ही कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए झांझर, फूल और माला खरीदी जा रही हैं। शहरी और कसाब दुकानों पर छुरियां और टोके तेज करवाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ खानेवाल अदनान रसूल से, जो एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी अदनान, क्या कहना है शहरियों का?
बिल्कुल ईद उल अज़हा के लिए खाने वाल के शहरों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तो कर ली, उनके बनाव संगार के लिए उनके झांझरें और बनाव संगार का सामान भी खरीद लिया है। और अब जरूरत है तो जब कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरी बुगदों की, तो खाने वाल के शहरों में छुरी बुगदों की दुकानों का रुख के लिए मेरे साथ एक सारी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मतलब अगर सर आप ये बताइए कि जो आपने कुर्बानी के जानवर खरीदा उसके लिए छुरी बुगदों की भी जरूरत, तो आप यहाँ आए हैं, तो आप इस वक्त क्या खरीद रहे हैं? भैया ने ये ज़िबा करने के लिए छुरियाँ खरीद रहे हैं और खाल उतारने के लिए खरीद रहे हैं और बुगदे खरीद रहे हैं। ये सुना है कि खानेवाल की बहुत मशहूर दुकान है, बहुत अच्छे इसके यहाँ पे औजार बहुत अच्छे मिलते हैं, इस वजह से इस दुकान का रुख किया है हमने। तो आप ये बताइए कि आप हर साल यहाँ खरीदने के लिए आते हैं या बस पहली बार आए? जी मैं पहली बार आया हूँ, सुना है कि ये दुकान बहुत मशहूर है इसलिए आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनकर ये कहना था कि ये खानेवाल की मशहूर दुकान है जहाँ पे छुरी बुगदे बहुत अच्छे मिलते हैं और हर साल हम यहाँ से खरीदते हैं, लेकिन इनके जो छुरी बुगदे हैं वो मिसाली होते हैं। तो इस कुर्बानी के जानवरों के लिए हमें छुरी बुगदों की ज़रूरत है ज़िबा करने के लिए, तो हम यहाँ से खरीद रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपकी मेजबान मेघा हाजिर है। होंगी दिलचस्प बातें। साडा हया इन्ना करना बकरे ने सिगरेट पी के आना ना ते बाहर ही बुरश कर लेना कि मालका नूं पता ना लगना। मालक मेरे को ना खो के ला लवे। सबको मुबारक होवे हुमैरा जी भी साडे चोई ने गाने और मस्ती का तड़का। मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। तमाम लोगों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा कि यार शॉपर ले चलूं, नबीहा ने ना गोश्त भी देना है मुझे, तो ये प्लीज सबसे पहले मुझे गोश्त दे दें। मेरी कढ़ाई की भी सुन ले, टाकू दोनों चुप करके मैंने आपके बारे में सुना है आप खवातीन को ज्यादा चांस देते हैं। नहीं जो अच्छा यार बंदे के जानवर 24